duopoly model. Uh, the past three models, Cornard, Stackelberg, and one more. कौन सा किया आप लोगों ने? Or you have done only two? Let's talk about Bertrand model. Bertrand model उसी duopoly का ही एक और phase, but slightly I think progress from the excuse me, Stackelberg model. So in this case, Bertrand, as you can see, the date 1883. If you will compare the dates, you will find that most of them gave these concepts around, 19th century only. So differs from Connor's in that he assumes that each firm expects that the rival will keep its price constant, irrespective of its own decision about pricing. ये Connord से same है. So Carnot in that, the difference between his and Carnot model is that in Carnot's model, it assumes that each firm expects that the rival will keep its price constant, irrespective of its own decision about pricing. ये Carnot का model है कि अगर सामने वाली फर्म अपना मॉडल चेंज भी करती है, दैट इज द प्राइस चेंज भी करती है, तो अनदर फर्म वो एक्सपेक्ट करती है विल एक्चुअली कीप इट्स प्राइस कांस्टेंट. But thus, each firm is faced by the same market demand and aims at the maximization of its own profit on the assumption that the price of the competitor will remain constant. So, the price of the competitor will remain constant. ये सब Carnot का concept है. How Bertrand changed this concept, that we will see in the next slide. So, next slide. Can you all see the slides? Are the slides visible to everyone? No, not just you. To everyone, Disha and others. Yes, ma'am. Okay. Okay. So in Bertrand model, okay, fair enough. In Bertrand model, the reaction curves are derived from isoprofit map. Isoprofit map याद रखिएगा, पीछे हम लोगों ने Stackelberg में यूज किया था. Isoprofit की मैंने डेफिनेशन दी थी आपको. अगर किसी को याद हो तो वो रिपीट कर सकता है. आई थिंक आप लोगों ने लिखी भी थी. So if you are writing notes at the same place where you wrote Stackelberg, so you can write, you can define isoprofit. Anybody can repeat that definition? Yes, go ahead. Hmm. Fair enough. They generate the same level of profit, the two or more variables, but at the end of the day, they will generate the same profit. So you can change the proportion of the variables, like in end same रहेगा, it will generate the same profit. So isoprofit map, which are convex to the axis, on which we now measure the prices of the duopolies. So each isoprofit curve for firm A shows the same level of profit, which would acquire to A from various level of prices charged by this firm. ये सारी चीजों का मतलब क्या है? ये मतलब है ये this in the next slide. Whatever is written over here, you will see in this diagram. In this diagram, again, it may seem very complicated, but then it's very simple diagram. Isoprofit पहले curves बना लीजिए अपनी copy में. Take your time, draw the diagram. Don't draw other बाकी की lines मत बनाइएगा. अभी के लिए केवल isoprofit curve बनाइए और A's reaction function बना लीजिए. A's reaction function जो आपके सामने है. Actually, Bertrand में A और B का reaction function अलग अलग है. So A's reaction function. As soon as you make it, you please let me know. In this case, what you will see is the isoprofit curves, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 isoprofit curves are drawn in front of you. There is a price, OX axis is having a price of A and OY axis is about price of B. And isoprofit curves actually show you that जितना भी proportion change हुआ है दो variable के बीच में, but the profit will remain the same. So that's what isoprofit curve is all about.
Don't change the slide. Keep the diagram slide as it is. If you have drawn it, drawn. Okay. Others, Kajal, have you drawn, beta? Yes, ma'am. काजल, संस्कृति, बन गया बेटा? Yes, ma'am. अच्छा, तो अभी स्लाइड इसी पे रहेगी, ठीक है? जो मैं एक्सप्लेनेशन इसका दे रही हूँ, पर स्लाइड आपकी इसी पे रहेगी. सो स्लाइड चेंज मत करिएगा, इसको देखिएगा. The isoprofit curve for A is convex to its price axis PA. आपको PA दिख रहा होगा. Can you see PA? Just PA. OPA लिखा हुआ है ना O X एक्सिस पे. चेक करते चलिए मेरे साथ. दिख रहा है PA? Yes, girls? Yes, ma'am. This shape shows the fact that firm A must lower its price up to a certain level. ये जो shape है ना, ये shape जो है, this shape is a convex shape. Isoprofit की ये जो shape है, ये convex है, concave नहीं है. तो convex का meaning होता है, उसका meaning basically होता है that a firm A must lower its price up to a certain level point. जब तक वो अपना प्राइस लोअर नहीं करेगी अप टू अ सर्टेन लेवल पॉइंट इट मस्ट लोअर इट्स प्राइस. और वो जो सर्टेन लेवल उन्होंने कहा है वो बताया है पी. पीई ई दिख रहा होगा आपको. एक रिएक्शन कर्व पे देखिए पॉइंट बना हुआ है ई. एक बना हुआ है ई डैश, उसके नीचे उसके ऊपर है ई. कैन यू सी ई? Yes, ma'am. ओके. तो मीनिंग ऑफ द कॉन्वेक्स लिख लीजिए. मीनिंग ऑफ द कॉन्वेक्स ये वैसे नेक्स्ट स्लाइड में है एक्सप्लेनेशन, बट आप अभी डायग्राम की स्लाइड पे रहिएगा. सो अप टू अ सर्टेन लेवल पॉइंट ई टू मीट द कटिंग ऑफ प्राइस ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर. वो हो क्या रहा है, वही रिएक्शनरी कर्व है. Because what is happening, let's say that B is cutting its price, so is responding, वो उसको और कट करके रिस्पॉन्ड कर रहा है. वो कम कर रहा है तो वो और कम कर रहा है. दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन in order to maintain the level of its profit. अच्छा, level of profit जो A का दिखाया गया है वो देखिए आप आइसोप्रॉफिट कर्व्स को पाई A1, पाई A2 और पाई A3 इस तरीके से दिखाया गया है. Higher the isoprofit curve, higher the profit. If the movement is happening on the same isoprofit curve, तो फिर profit will remain the same. बस वो उसका composition that is proportion change होगा. लेकिन अगर मूवमेंट हुआ है फ्रॉम पाई वन A1 टू पाई A2, then the profit has, that means increase. So ये याद रखिएगा that higher the curve, higher the profit. So in this case, in order to maintain the level of its profit, pi A जो है उसका मिनिमम प्रॉफिट है. ये तो मिनिमम उसको चाहिए ही चाहिए. इसको समझिए जैसे कि शटडाउन पॉइंट हम लोग पढ़ाते थे माइक्रो में. तो शटडाउन पॉइंट पढ़ाते हैं कि जब एवी कवर हो जाता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तब तक कवर होता है तब तक वो फर्म चलाता रहेगा, अदरवाइज इट विल क्लोज. तो समझिए ये प्रॉफिट जो है उसका एक तरीके से एवी का काम कर रहा है. बिल्कुल लोअर वाला, सबसे लास्ट वाला उसने लिया हुआ है. सो ये मिनिमम है. इससे कम अगर प्रॉफिट हुआ देन यू विल हैव टू शट डाउन. However, after that price level has been reached, and if B continues to cut its price, firm A will be unable to retain its profit, even if it keep its own price unchanged. फिर वो retain नहीं कर पाएगा. अगर इससे भी नीचे B ने कट कर दिया
तो ये जो बिल्कुल नीचे वाला प्रॉफिट वाला है फिर वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, एज आई सेड फिर वो शटडाउन वाली पोजीशन आ जाएगी। सो इफ फॉर एग्जांपल फर्म बी कट्स इट्स प्राइस एट पीबी, अब आपने डायग्राम में देखिए यू कैन सी पीबी कट्स इट्स प्राइस at PB, firm A will find itself at a lower ISO profit curve by A1। तो सबसे लोअर जो PB पे अगर आ गया तो सबसे लोअर प्रॉफिट कर्व पे वो आ जाएगा। आप लोगों को PB दिख रहा होगा, और PB का जो डिफरेंस आ रहा है एक रिएक्शन कर्व से और आइसो प्रॉफिट के बीच में, उसमें देखिए एक डॉटेड लाइन बनाई गई है, और डॉटेड लाइन से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। तो पीबी और ई डैश, पीबी और ई डैश का जो फर्क है, जो डिस्टेंस है, वही प्रॉफिट उसका तय करता है। So PB is the price that has been lowered by B। अब इससे ज्यादा प्राइस लोअर नहीं होगा। So this is the lowest they anybody can or the other firm can go। So the reduction of profit of A is due to the fall in price and the increase in output beyond the optimal level of utilization of the plant with the consequent increase in cost। प्रॉफिट ए का कम हो रहा है क्योंकि प्राइस बहुत नीचे गिरा रहा है बी। दूसरी चीज, इंक्रीज इन आउटपुट बियॉन्ड द ऑप्टिमल लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट, प्लांट को जो प्लांट की कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा यूज किया जा रहा है, तो वो आउटपुट बढ़ाने के लिए विद द कॉन्सिक्वेंट, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, प्लांट को अगर उसकी कैपेबिलिटी से ज्यादा यूज करेंगे आप तो फिर इंक्रीज इन कॉस्ट इज द कॉन्सिक्वेंस। तो एक तो प्रॉफिट कम हो रहा है, एक वो कारण है बिकॉज बी इज रिड्यूसिंग इट्स प्राइस, एक और कारण है बिकॉज ए इज स्ट्रेसिंग अपॉन हायर आउटपुट बियॉन्ड द ऑप्टिमल लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट विद द कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन कॉस्ट। तो जो आपका डायग्राम की नेक्स्ट वाली स्लाइड है उसको करिए, ये नेक्स्ट स्लाइड है, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसमें देखिए लिखा है कि व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, कॉन्वेक्स है और फिर इन ऑर्डर टू मेंटेन पाई ए 2 उसको कहाँ तक जाना पड़ रहा है, मेंटेन उसका मिनिमम लेवल पाई ए 2, लेकिन वो आ रहा है पाई ए 1 पे, बहुत ही लोअर लेवल, दैट इज अ लॉस, दैट कैन लीड टू लॉस। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, तो firm B cuts its price as I said, clearly the lower the iso profit curve, the lower the level of profit। सो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को अभी समझ में आया होगा कि पीबी हम प्राइस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, और लास्ट के दो कर्व्स जो हैं वो हमने लिए हुए हैं आइसो प्रॉफिट के, सबसे लोअर वाला पाई ए 1 एंड एक्चुअली में उसका मिनिमम जो है वो पाई ए 2 है, दैट इज द लिमिट। उसके बहुत नीचे जाएगा तो देन ही विल हैव टू क्लोज डाउन। इसकी नेक्स्ट स्लाइड करिए। To summarize, for any price charged by firm B, there will be a unique price of firm A, which maximizes the latest profit. This unique profit maximizing price is determined at the lowest point on the highest attainable iso profit curve of A. The minimum point of the iso profit curve lie to the right of each other, reflecting the fact that as firm A moves to higher level of profit, it gains some of the customers of B, with the latter increases its price even if A raises its price। ये कर्व जो है अपनी फिगर में देखिएगा, ये जो A का रिएक्शन कर्व है, दिस रिएक्शन कर्व इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये जो एरो बनी हुई है दिस इज अ कर्व्ड लाइन। ये कर्व वो इसीलिए है क्योंकि जितना भी जो भी लोएस्ट पॉइंट आइसो प्रॉफिट कर्व का है ना, उस पे देखिए ये पॉइंट नहीं बने हुए हैं, उसके राइट से ये लाइन जा रही है। कैन यू सी दैट? Can you see what I'm saying? Yes, girls. नहीं, that's not what I'm talking about. A का रिएक्शन लाइन जो है ना, आप डायग्राम पे जाइए, A का जो रिएक्शन फंक्शन की जो लाइन है, एरो जिस पे बना हुआ है, जो आइसो प्रॉफिट कर्व पे बनी हुई है, दिख रही है आप लोग को? हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. एवरीबडी कैन सी दैट। हाँ, वो देखिए दैट इज इट्स एक्चुअली लीनिंग टुवर्ड्स राइट, दिख रहा है आप लोग को? स्ट्रेट लाइन नहीं है। Yes, ma'am.
Yes, इट इज ma'am. लीनिंग टूवर्ड्स राइट। तो ये जो लीनिंग हो रही है उसकी, वो देखिए हर आइसोप्रोफिट कर्व के मिनिमम पॉइंट के राइट में है, मिनिमम पॉइंट पे नहीं है, उसके राइट पे है। कैन यू सी दैट? यस गर्ल्स? बाकी लोग बताओ। आकृति, डू यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? ओके आकृति, can you see what I'm talking about? Yes, what I'm talking about, beta? What am I saying? Ma'am, just in the diagram, if we see the minimum point, if I use a color, I guess. Minimum point? In this, if any, yes, ma'am, if everybody sees the cursor, so the minimum points are in the Yeah. left side of the encircled dark circles. The curve is the lowest at these points, and the reaction functions points are collected on the righter side. Yes, absolutely. You're right. बाकी लोगों को समझ में आया? अब this is for other people who can't get what I'm saying. ये जो आइसोप्रोफिट के कर्व्स हैं, 1 2 3 4 5 6 कर्व्स बने हुए हैं, इनके ऊपर एक एरो से लाइन बनी हुई है जिस पे लिखा है एज रिएक्शन फंक्शन। सबको दिख रही है ये लाइन? नाउ आई वांट टू टॉक टू Yes, नॉट ma'am. पीपल। नो, हाँ खुशबू, आपको दिख रहा है बेटा? एंड संस्कृति, कैन यू सी ऑल दिस? Yes, ma'am. ठीक है। अब ये जो लाइन, ये जो एरो के साथ बनी हुई है, ये दिस पर्टिकुलर लाइन इज लीनिंग। आपको दिख रहा है ये एक तरफ बेंट है। Yes, ma'am. तो ये जो बेंच है एक तरफ, इस बेंच का मतलब क्या है? इस बेंच का मतलब है कि ये जो मिनिमम आइसोप्रोफिट के मिनिमम है, देखिए मिनिमम क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट होता है ना कर्व का। तो कर्व बना हुआ है, उसका लोएस्ट पॉइंट जो है वहां पे देखिए, तो यू विल सी कि ये एकदम उस पॉइंट पे नहीं बनी हुई है, उसके लोएस्ट पे, उसके राइट से जा रही है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर जो आप लोगों को समझ में आ रही है जो मेरी बात, तो प्लीज रिपीट करिए। संस्कृति, डिड यू गेट व्हाट आई सेड? संस्कृति? Yes, ma'am. बताइए क्या कह रही हूँ? Tell me what I'm saying. Archita, you can also jump in. Sure, ma'am. On the isoprofit lines, the reaction line of A is leaning towards the right, which is towards the left of the lowest point. So, It's leaning towards the right and इसका कारण क्या है? इसका रीजन ये है कि जितना ऊपर चलता चला जाएगा वो लाइन, उतनी उसकी आइसोप्रोफिट उसके कस्टमर, बी के कस्टमर उसको मिलते चले जाते हैं ए को। बिकॉज फॉर अ सिंपल रीजन, बी का देखिए जो प्राइस बढ़ता जा रहा है, पी के ऊपर जो भी प्राइस है वो बी का है। पी के ऊपर PB1 लिखा है या PB2 लिखा है, इररिस्पेक्टिव, उसका कोई मतलब नहीं। उसका सिंपल मतलब ये है कि बी प्राइस बढ़ा रहा है। अब बी प्राइस बढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ए के को इसका फायदा होगा, और जो कस्टमर्स बी के थे वो ए के पास चले जाएंगे। इसलिए रिएक्शन कर्व जो है वो लीनिंग है, वो सीधी एरो नहीं है, वो लीनिंग लाइन है। ठीक है खुशबू, आपको समझ में आ रहा है? खुशबू, कैन यू अंडरस्टैंड? हाँ बेटा, Yes, ma'am. ठीक है। मुझे आप बताएंगी मैं क्या कह रही हूँ?
हाँ खुशबू, आई एम वेटिंग. यस बेटा जी. Why so much time? Asta, what about you? मैम ये लाइन हाँ आस्था, सॉरी बोलो बेटा. You don't need to apologize unnecessarily. बताओ. ये लाइन राइट साइड इसलिए जा रहा है क्योंकि बी अपना प्राइस बढ़ा रहा है. हाँ. और उसके ए की तरफ उसकी कस्टमर्स A की तरफ. That's why it's leaning. Yes, that's it. Good answer. Good. So that's the idea. Basically वो इसलिए लीन कर रही है, नहीं तो स्ट्रेट लाइन आपके सामने होती. तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनी हुई. अच्छा, इसमें देखिए इसके बाद वाली आपके डायग्राम की जो थर्ड स्लाइड है, डायग्राम के बाद वाली थर्ड स्लाइड को देखिएगा. टू समराइज, please change the slide whoever is doing it. To summarize, for any price charged by firm B, there will be a unique price of firm A which maximizes the latest profit. ये सब इसमें लिखा हुआ है. You don't कोई ज़्यादा इसमें माथापच्ची की जरूरत नहीं. If we join the lowest point of the successive isoprofit curve, we obtain the reaction curve. इन्हीं lowest point को उन्होंने कहा है कि आप अगर join करते चले जाएंगे तो आपको reaction curve मिल जाएगा. This is the locus of points of maximum profit that A can attain by charging a certain price. Definition of locus of point. इसको अलग से लिख लीजिए. This is the definition कि कैसे क्या मतलब है. This is the locus of points of maximum profit that A can attain by charging a certain price given the price of its rival. The reaction curve of firm B may be derived in a similar way by joining the lowest point of its isoprofit curve. पर्पस था रिएक्शन कर्व निकालने का. रिएक्शन कर्व जब कब निकलता है, जब दोनों का आप प्राइस ले लीजिए. यहाँ पे यही बना हुआ है कि जब वो PB है तो वो PA लेट्स से PA3 है. जब वो P है और तब देखिए एक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट. वो दूसरे आइसोप्रॉफिट पे P है. P जो है वो एक्चुअली हायर आइसोप्रॉफिट पे है. PB लोअर आइसोप्रॉफिट पे है. PB1 और PB2 उसको और लेट्स से PB1 है ये, उसको A2 पे ले जाता है. दैट इज अ सेम आइसोप्रॉफिट कर्व बट दिस टाइम the customers but this time at a higher price. और PB1 तो बिल्कुल ही डिजास्टर सिचुएशन है, वो PBA1 पे लेके जाता है बट ऑफ कोर्स एट अ हायर प्राइस. सो क्या हो रहा है कि जितना ज्यादा ये जो आप देख रही हैं ये एरोज जो हैं वो जो PA1 से PA2 से PA लेट्स से 0 पे बने हुए हैं, ये एरोज लेफ्ट साइड दिखा रहे हैं. ये लेफ्ट साइड इसलिए दिखा रहे हैं कि जितना प्राइस बढ़ रहा है उतना इसका रिएक्शन ये हो रहा है कि जितना ज्यादा प्राइस उतना ज्यादा ये जो आपका ये जो प्राइस है ये यहाँ पे वो कम करता चला जा रहा है. सो द रिएक्शन ये होगा कि बी के जो कस्टमर्स हैं वो ए को मिलते जाएंगे. ऑल ए हैव टू डू इज टू वेट एंड बट वो रिएक्शन आता जरूर है. नॉट रिएक्ट इज नॉट अ सिचुएशन. ये भी कहा जा सकता है कि ए शुड एक्चुअली नॉट डू एनीथिंग एंड शुड जस्ट वेट, बट ऐसा होता नहीं है. फर्म्स ऑलवेज रिएक्ट. सो रिएक्शन में इसीलिए व्हाट विल हैपन, कीप ऑन हैपनिंग दैट ए विल कीप ऑन रिएक्टिंग एंड जितना प्राइस वो बढ़ाता चला जाएगा बी, ए का प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा. सो दिस इज हाउ द बर्ट्रैंड वांटेड टू शो द आइसोप्रॉफिट कर्व. इसके बाद देखिए एक डायग्राम आपको मिलेगा. दिस डायग्राम विल शो यू अ बीज रिएक्शन कर्व. नेक्स्ट डायग्राम. कैन यू सी दैट? कैन यू सी बीज रिएक्शन कर्व? इन द डायग्राम स्लाइड में दिख रहा है आप लोग को?
Yes, ma'am. हेलो, ओके। B's reaction curve is little different from A. A का नीचे से ऊपर था, देखिए आइसोप्रोफिट किस तरीके से बने हुए हैं B वाले में। B के आइसोप्रोफिट will be actually ये कौन सा शेप है? Is this also convex? Is this also convex? This is also convex। और ये एक चीज है, ये B का रिएक्शन कर्व लोएस्ट पॉइंट पे बने हुए हैं, टेंजेंट बना बना के उन्होंने उसको लोएस्ट पॉइंट पे को जोड़ दिया। सो लोकस ऑफ पॉइंट at the lowest of the isoprofit curve will give you a reaction curve. Locus of the point that lies at the lowest of the isoprofit curve will give you a reaction curve। किसी का भी आप बना लीजिए, वो चाहे आप उसका बनाइए, A का बनाइए चाहे B का बनाइए, that remains the same। Did you understood or should I just stop here and first see what you have got it? समझ में आया है कि नहीं? हेलो, Ma'am, please explain it. क्या चीज बेटा जी, क्या एक्सप्लेन करूं ये तो बताओ। मैम इस वाले कर्व में भी आप वापस से एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा वाला बेटा जी? दोनों? नो मैम, Both बी the वाला। बी वाला दिख रहा है तुम्हें Yes, अपनी ma'am. साइड पे? मैम बी वाला। बना लिया Yes, तुमने ma'am. कॉपी में? Yes, ma'am. तुम्हें क्या दिख रहा है इसमें मैम बताओ? बस वही बना रहे थे। नहीं दिख क्या रहा बिटिया, ये बताओ। मैम उसमें बी का रिएक्शन फंक्शन दिया हुआ है और मैम इसमें वही पाई A1 पाई A2 एंड पाई A3। मैम इसमें लाइक वो ओरिजिन के पास है। मैम इसमें और तो कुछ बना नहीं हुआ है। क्योंकि और कुछ जरूरत ही नहीं तुम्हें। इसमें रिएक्शन उसने बता दिया बनता कैसे, उसने कहा लोअर आइसोप्रोफिट कर्व के पॉइंट उठाइए, ठीक है? उसमें उसको ABCD लिख लो उसमें। यू आर गेटिंग विद व्हाट आई एम सेइंग? यस मैम। हाँ, तो लोएस्ट आइसोप्रोफिट कितने बने हुए हैं गिन के बताओ। मैम 6। 6 बने हुए हैं, 1 2 Yes, 3 ma'am. 4 5 6, ठीक है? तो 6 बने हुए, तो पाई A1 पाई ma'am. और पाई B1 पाई B2 पाई Yes, B3 ma'am. ऐसे बने Yes, हुए, ma'am. ठीक है? पाई Yes, B1 को ma'am. देखो, Yes, ma'am. पाई B1 को देखो, उसमें एक टेंजेंट लाइन बनाई गई है। कैन यू सी दैट? टेंजेंट लाइन Yes, होती है ma'am. उससे जो Yes, टच ma'am. कर रही है ना, उसको सबसे Yes, लोएस्ट ma'am. पॉइंट पे, उसका लोएस्ट पॉइंट पे एक सर्कल बना दिया उसने, उसको A लिख लो, Okay. Yes, ठीक है? ma'am. लिख लिया? Yes, अब ma'am. Yes, PB2 ma'am. पे आओ। अब PB2 इज अ हायर कर्व। Yes, पॉइंट ma'am. क्या है? पॉइंट Yes, ये है ma'am. कि ये रिएक्शन हो रहा है, उसके भी लोएस्ट पॉइंट पे एक टेंजेंट दे दिया उसने, ठीक है? वो बताना क्या चाहता है? वो बताना ये चाहता है कि जितना भी कर्व आगे बढ़ता जाएगा, उसका जो मिनिमम पॉइंट होगा उस पे एक टेंजेंट बना लीजिए और Yes, वही ma'am. मिनिमम पॉइंट्स को जोड़ दीजिए। Did you Okay. get that? Okay, ma'am. Once you will, हाँ, Yes, सारे ma'am. मिनिमम पॉइंट को जोड़ दीजिए। Once you will do that, what you will get? क्या मिलेगा? Ma'am, B's reaction function. These reaction कर्व। समझ गई? ऐसे ही Yes, ma'am. एज रिएक्शन कर्व का डायग्राम ज्यादा एक्सप्लेनेबल था, क्योंकि वो ये बता रहा था कि एक जब प्राइस बढ़ाता है तो दूसरा काम करता है, दूसरे में उसको बताने Ma'am, की दूसरा, जरूरत yes, नहीं है, ma'am. क्योंकि सेम ही चीज हो रही है। पर अब वो बी के साइड Yes, से ma'am. दिखा रहा Yes, है, ma'am. ठीक है? इसलिए उसमें बहुत ज्यादा तुम्हें बनाने की जरूरत ही Yes, नहीं, ma'am. वो Yes, तो ma'am. बता चुके हैं पीछे क्या हुआ। Okay, सो ma'am. बेसिकली रिएक्शन कर्व इसका Yes, जो ma'am. मिलेगा वो एक ऐसे मिलेगा कि OX एक्सिस के पैरेलल जाएगी लाइन, है ना? बी का रिएक्शन Yes, ma'am. कर्व OX एक्सिस के Yes, पैरेलल ma'am. लाइन जाएगी, जबकि ए का रिएक्शन कर्व किसके पैरेलल Yes, जा ma'am. रहा था? OY के पैरेलल जा, Ma'am, है ना? OY के, yes, है ma'am. ना? बस ये याद रखना हमेशा, Yes, ma'am. हमेशा ये चीज याद रखना कि बर्ट्रेंड ma'am. ने जब जो भी रिएक्शन कर्व बनाया था, उसमें जो ए का रिएक्शन था वो OY के Yes, पैरेलल ma'am. था, और जो बी का रिएक्शन था वो क्या था? OX के पैरेलल था, है ना? OX के पैरेलल था। Yes, OX ma'am. के पैरेलल था। तो ये चीज Yes, जब ma'am. याद रहेगी तो फिर ये याद रहेगा कि ये मिनिमम पॉइंट पे बनेगा, और जितने भी मिनिमम पॉइंट हम इसमें जितने भी बना लो वो लोकस को बस ऐड कर दो, दैट्स इट।
लोकस होता ही है बेटा, लोकस इज समथिंग दैट इज अ मिनिमम पॉइंट को जब हम ले लेते हैं, दैट इज नोन एज लोकस। Yes, ठीक है, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. लेकिन एक चीज याद रखना Yes, बेटा, ma'am. दिस इज फॉर Yes, एवरीवन, ma'am. नॉट जस्ट फॉर यू। दिस विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। ये जो रिएक्शन कर्व बनेगा जिसपे एरो बना हुआ है एंड में, दिस विल नॉट बी Yes, अ ma'am. स्ट्रेट It will be लाइन। जैसे slanted. उसमें वो स्ट्रेट नहीं थी ए के रिएक्शन में, बी में भी वो स्ट्रेट नहीं Yes, होगी। ma'am. इस केस में आप मुझे बताएंगी किस तरफ लीनिंग है, लेफ्ट है कि ज्यादा राइट है? लेफ्ट की तरफ लीन कर रही है लाइन कि राइट की तरफ लीन कर रही है लाइन? Ma'am, left की तरफ. लेफ्ट की तरफ लीन Left. कर रही है। उसमें क्या था? हाँ यस, Yes, उसमें क्या ma'am. था? ए में Ma'am, वो right राइट की की तरफ तरफ। था. Ma'am, वो right था. बस दैट्स Yes, इट, ma'am. दीज आर द कोर्स। तो जब ये चीजें याद रहेंगी तो बर्ट्रैंड Yes, ma'am. 1 मिनट में बन जाएगा और रिएक्शन कर्व में बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, याद रहेंगी ये चीजें। The leaning of the lines or Yes, the ma'am. reaction curves have to be remembered, and the reaction curve किससे parallel जा रहा है, बाकी सब आपको बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। It's nothing, वो आइसोप्रोफिट बनेगा और लीनिंग बस आप राइट को दिखाइएगा ए में और बी में किसमें दिखाएंगी, लेफ्ट में। बस जहां आपने ये बनाया Left. आइसोप्रोफिट Okay. के साथ, you will get the marks, the curve is right. Okay? Okay, ma'am. But then Thank- you have to write an Yes, ma'am. explanation. इसमें केवल जो पहला वाला ए का डायग्राम था, ऑल ही इज डूइंग इज कि एक कॉमन पी ले लिया। पी उसने कहा एक समझिए ओरिजिनल प्राइस है, फिर समझिए पी को उसने बहुत कम कर दिया, पी से पी बी ले आया, तब ए का क्या रिएक्शन होगा। अब पी पे फिर से आ जाइए और पी को समझिए कि बी ने अगर पी से बढ़ा दिया तब ए का क्या रिएक्शन होगा। Now in either cases what is happening is that A is acting and reacting और उसमें उसका रिएक्शन कर्व लिया, लेकिन B वाले में आपको B का रिएक्शन कर्व मिलेगा। इसका भी एक सिग्निफिकेंस है, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। Bertrand model leads to a stable equilibrium defined by the point of intersection of the two reaction curve. फाइनल जो बनता है, जो फाइनल बर्ट्रैंड का बनता है, वो दो के रिएक्शन, दोनों एरो बस उठाए जाते हैं और कुछ नहीं बना होता। जैसे डिमांड एंड सप्लाई बनाते हैं, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाते हैं, सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग बनाते हैं, इक्विलिब्रियम बनाते हैं, ऐसे ही रिएक्शन कर्व बना दो। जो फिगर आई है वो और जो ए की फिगर आई है वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। Point at E denotes a stable equilibrium since any departure from it sets in motion forces which will lead back to point E. तो basically point ये है कि दोनों के रिएक्शन कर्व देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बनाए गए हैं। Can you see next slide? Yes girls? जिसमें A रिएक्शन Yes, और B रिएक्शन दोनों बना हुआ, देखिए Yes, ma'am. फिगर से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, वैसे ही फिगर बना दी गई है। बस ए का उसने रिएक्शन कर्व उठाया, बी का रिएक्शन कर्व उठाया, बाकी सब तो 45 डिग्री पे बना दीजिए। 45 डिग्री पे एक डायगोनल खींचिए, डायगोनल बीच में से जाएगा, जो बीच में से डायगोनल जाएगा, जिस पॉइंट पे डायगोनल और वो दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करे उसको ई दे दीजिए पॉइंट। ठीक है, अब ई पॉइंट आपने दे दिया, उससे उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए। हमेशा एक काम करिए डायग्राम में, डायग्राम जो होता है वो बहुत सिंपल चीज होती है, डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं होती है। इकोनॉमिक्स में होता क्या है कि इंटरसेक्शन पॉइंट लीजिए और उससे पहले एक पर्टिकुलर पॉइंट को पता कर लीजिए, फिर जो भी चीजें उससे डेविएट होंगी वो या तो प्रॉफिट देंगी या लॉस देंगी। बस इसका ये मतलब होता है। अब इसमें देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है। अब इस केस में उसने कहा कि अब क्योंकि ट्रेड ऑफ तो होगा ही होगा, कर्व जो है वो इस तरीके से बने हुए हैं, तो क्या होगा अगर वो लाइन उससे नीचे आती है, जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, प्रोबेबली PB2 देखिए, PB2 का रिएक्शन आया A2 के फॉर्म में और PB1 का रिएक्शन आया PA1 के फॉर्म में। लेकिन इस केस में रिएक्शन के किस उस पे ए के देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स बने हैं उस पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये ना भी बनाएं और केवल रिएक्शन कर्व का इक्विलिब्रियम बना दें तो भी ये डायग्राम सही। You don't need to draw these if you don't want to. They are not asking you to draw that. All they are Bertrand का ये complete होगा, लेकिन 3 डायग्राम से, A is reaction curve, B is reaction curve, and the equilibrium between the two reactions. Clear?
Okay. Should I move ahead? Yes, girls. आगे बढ़े? Ma'am, I'll just draw it first, ma'am. Can I? हाँ बोलो. हाँ बेटा. मैम इसको एक बार ड्रॉ कर ले मैम. हाँ कर लीजिए. Yes, ma'am. ड्रॉ इट एंड इसमें एक बिहेवियरल पैटर्न दिख रहा है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा. बिहेवियरल पैटर्न ये होता है बर्ट्रैंड का, जो नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है. स्लाइड मत चेंज करिएगा प्लीज, आप उसी पे रखिएगा. द बिहेवियरल पैटर्न इमर्जिंग फ्रॉम बर्ट्रैंड assumption इज नाइव फर्म नेवर लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस. यही है कि जो नई फर्म होती है, नाइव फर्म होती है, वो पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्न नहीं करती है. देखिए इसमें सिंपल रिएक्शन कर्व का मतलब ये है कि एक कर्व जो है वो प्रॉफिट बनाती चली जा रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द अदर फर्म इज डूइंग. यही चीज उन्होंने एक में के कंटेक्स्ट में समझाई है कि व्हाट विल हैपन कि बी का जब प्राइस बढ़ता जाएगा तो भी ए को ही प्रॉफिट होगा, ए के कस्टमर बढ़ जाएंगे एंड ए हायर प्रॉफिट कर्व पे चला जाएगा. सो ये चीजें, दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. Each firm maximizes its own profit, but the industry profits are not maximized. Each firm can maximize its profit, but जरूरी नहीं है कि it will be a reflection कि इंडस्ट्री भी मैक्सिमाइज हो रही है, या तो प्रॉफिट इंडस्ट्री में भी मैक्सिमाइज हो रहा है. डायग्राम बन गया हो तो सेकेंड लास्ट स्लाइड को दिखा दीजिएगा. सेकेंड लास्ट स्लाइड. Yes, ma'am. ओके, एवरीबडी गॉट दैट डायग्राम? सबका हो गया? As usual, I will be sending all these PPTs on group. So अपने अपने उस पे PPTs को संभाल के रखो, और जब वो हो जरूरत पड़ेगी तो वो PPT को खोल के देखना. There is a exhaustive explanation of what you are looking for. Second last slide में देखिए, the equilibrium price will be the competitive price. In the example of costless mineral water production, the price in Bertrand model would be fall to zero. If production is not costless, then price would fall to the level which would cover the cost of the duopolis inclusive of a normal profit. जो important है इस particular slide में वो है the model is closed, it does not allow entry. Very important concept. Closed models does not allow entry. मतलब कि entry physical man-made barrier से रोकी जाती है. दो तरीके के बैरियर होते हैं एंट्रीज को रोकने के. एंट्री समझ रहे हैं, फर्म कैन नॉट एंटर इनटू दिस मार्केट. केवल दो का ही, डियोपोली का मतलब ही यही है कि केवल दो प्लेयर होंगे इसमें. अब बाहर के लोग और दूसरे एंट्री अगर करना चाहेंगे, देन व्हाट विल हैपन? देन दे आर सेइंग दैट द मॉडल इज क्लोज्ड एंड डज नॉट अलाउ एंट्री. The interesting feature of both Carnot and Bertrand model is that the limit of duopoly is pure competition. Neither model refutes the other. Each is consistent and is based on different behavioral assumptions. We may say that Bertrand assumption about the fixity of the price of the rival is more realistic in view of the observed preoccupation of firms which keeping their prices constant except in cost inflation. So बर्ट्रैंड का अजम्पशन ये है कि दूसरे लोग अपना प्राइस फिक्स रखते हैं. ये अजम्पशन वो काफी रियलिस्टिक है, बट कीप इन माइंड कि दिस फर्म डज नॉट अलाउ और दिस मॉडल डज नॉट अलाउ एंट्री फ्रॉम आउटसाइड. Here is the question: how many kind of barriers are there to stop the entry? The answer to that question is there are two type of barriers. एक natural होता है और एक होता है man-made. So, can you give me an example of a natural barriers? That act as a barrier in the entry of a new firm. Natural barrier और man made. चलिए किसी का भी एग्जाम्पल दीजिए, अगर आपको man made barriers पता हो. Yes, girls. मैन मेड बैरियर्स जिससे कि दूसरी फर्म एंटर ना कर सके.
अरे, give me an Ma'am, the answer. natural barriers can be Yes, please go ahead, Archita. Ma'am, the natural barriers can be if someone owns a natural resource, for example, a country owns a natural resource, or the land that you own has some natural resource, you can prevent others from accessing it. And Owning and is a a man-made. barrier in itself. No, Archita, owning is a barrier in itself. Yes, ma'am, you can restrict access. You can restrict access. Acha, you're talking about the boundary within the country, the boundary of the Yes, country. ma'am. Okay, fair enough. Or man-made barrier. And man-made barrier can be extreme cost cutting so that other firms cannot compete. But then that will reduce the profit. This is a duopoly, as you can see. प्रॉफिट के लिए ही सब कुछ हो रहा है. अगर बहुत एक्सट्रीम कॉस्ट कटिंग होगी तो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाए. कैसे जैसे कि कैसे इंश्योर किया जाता है कि दूसरी फर्म्स एंटर ना कर सके. बहुत सारे एग्जांपल हैं अच्छा. Ma'am, copyrights, IPs, I guess. हाँ, ये सब होता लेकिन है. और बिल्कुल एब्सोल्युटली ये है ही, यही सब चीजें. दूसरे भाई एक सिंपल चीज है, जैसे आप किसी और को एंटर नहीं करने दे सकते. शी इज राइट. उसमें एक लाइसेंसिंग की पॉलिसी होती है. लाइसेंस लगा दीजिए, यू डोंट लेट अदर्स एंटर. तो ये मैन मेड बैरियर है. जैसे गवर्नमेंट लाइसेंस लगा देती है हर चीज में, यू कांट एंटर. सो लाइसेंसिंग है, कॉपीराइट्स हैं, ये सब चीजें हैं. रिस्ट्रिक्शंस जितने भी तरीके के आप लगा सकते हैं जो कि दूसरे को एंटर ना करने दें, वो मैन मेड बैरियर्स आ जाएंगे. Naturally, she said boundaries, which is okay, fine, yes, that could work. So anyway, this is a duopoly model which keeps just a two. ये याद रखिएगा, it's a closed model. Last slide में आपको मिलेगा product differentiation. Product differentiation in selling activities, two main weapons. अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको समझा दीजिए जरा. नॉन प्राइस कंपटीशन, जिसमें प्राइस से कंपटीशन नहीं होता. देखिए, दो तरीके के कंपटीशन होते हैं, एज अर्शिता वाज सेइंग. एक्सट्रीम कॉस्ट कटिंग भी एक होता है, बिल्कुल आई एग्री. बट वो एक्सट्रीम कॉस्ट कटिंग तब, एक्चुअली कॉस्ट कटिंग तब होता है जब उनको ये पता होता है कि सामने वाला भी कट करेगा. अगर उसको ये लगे कि मैं कट करूंगा, सामने वाला प्राइस विल नॉट कट, देन ही विल नॉट गो फॉर दैट. एनीवे, नॉट द पॉइंट. एक होता है प्राइस कंपटीशन, जिसमें कि प्राइस के बेसिस पे कंपटीशन किया जाता है. एक होता है नॉन प्राइस कंपटीशन, जिसमें प्राइस को कट नहीं किया जाता है, दूसरी चीजों को में चेंजेस आए जाते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड सेलिंग एक्टिविटीज आर द टू मेन वेपन्स ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन, which is the main form of competition in the real business world. Both models do not define the length of the adjustment process. Although dealing in terms of time period, the approach is basically static, not the point. What do you mean by the term product differentiation? What do you mean by the term product differentiation? कोई भी दो ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए. हाँ, एग्जाम्पल दीजिए. Take anything. चलिए, नेस्कैफे और ब्रू. What is the difference between the two? दोनों पी है आपने कभी? Are you a consumer? चलिए, ठीक है, तो आपको दोनों में डिफरेंस पता होगा. क्या है दोनों में डिफरेंस? पीने पे क्या लगता है? दोनों क्या चीज बेच रहे हैं? नहीं, वो तो बेच रहे हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस है दोनों में ना. क्या डिफरेंस है ये पूछो. आपको इंस्टेंट और फिल्टर कॉफी में फर्क पता है? Do you know what is the difference between instant coffee and a filter coffee? दोनों में वही फर्क है. ठीक है, इसको गूगल करिएगा. What do you mean by instant coffee? What do you mean by filter? Yes, go ahead. Which one is the instant coffee, girls? And which one is the filter one? ये जो दो एग्जाम्पल दे रही है दीक्षा, which one is the instant coffee in that? Which one is the filtered one? Yes. नेस्कैफे तो सबने पी है.
I hope everybody has consumed Nescafe. Yes, Astha? आस्था, Yes, ma'am. नेस्कैफे ma'am. कौन सी कॉफी है बेटा? पी है ना कॉफी? Yes, ma'am. कॉफी तो पी है। कभी कभी जानने की कोशिश की है कि नेस्कैफे क्या है कॉफी? Is it the instant coffee or is it a filtered one? That's what I'm asking. नहीं, पहले आप लोग इसमें फर्क पता करिए। आप लोग चीजें कंज्यूम करते हैं, इट्स वेरी फनी दैट यू डोंट नो कि क्या कंज्यूम कर रहे हैं। एनीवे, नॉट द इशू। She is right. Product differentiation is actually what Diksha is talking about is in terms of taste. और उसके इंग्रेडिएंट्स में फर्क है। जो ब्रू है वो इंस्टेंट कॉफी है, इसलिए ब्रू थोड़ी ज्यादा सिवियर होती है। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग कॉफी, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉफी। नेस्कैफे इज वे माइल्डर एंड दैट व्हाई बिकॉज इट इज अ फिल्टर्ड वन। एनीवे, द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो होता है वो दीक्षा जो बात कर रही है वो टेस्ट और इंग्रेडिएंट में बात कर रही है। क्या उसी में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो सकता है कि और भी किसी चीज पे हो सकता है, किसी लेवल पे? बिकॉज कई लेवल है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और किस लेवल पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है? Sometimes companies release similar products with different features. For example, every new laptop has slightly different variation, a new processor, new micro. Absolutely. This is what Archita is talking about. Is it integrated circuit? The integrated circuit, which means that the software is different. What she's saying, the features are different. The features have to be, it's an inbuilt thing. So when it comes with the inbuilt different features like Samsung or let's say a Micromax, these are the two companies which are probably bringing the phone or a mobile phone in the same ranges. They have probably let's say starting from 10 to let's say they go till 40, 45. The range may be the same. What they are different? What they are doing is integrated circuit में difference करते हैं। कोई feature देता है, कोई feature देता है, तो वो integrated circuit level पे difference होता है। तो एक तो इंटरनल सॉफ्टवेयर्स में डिफरेंस हो सकता है, एक जैसे उस बच्ची ने कहा कि टेस्ट और प्रेफरेंस, उसमें टेस्ट में या इंग्रेडिएंट में डिफरेंस हो सकता है। और किस लेवल पे डिफरेंस हो सकता है? एनीथिंग एल्स दैट कम्स टू योर माइंड? टेक एनी टू प्रोडक्ट्स, कंपेयर इट यार, दिमाग चलाओ। कोई भी दो प्रोडक्ट लो, कंपेयर इट। प्राइस प्राइस में तो है का नहीं बेटा difference. जी, प्राइस में डिफरेंस नहीं। देखिए जो एक बेटा रेंज होती है ना, रेंज समझती है विदु? रेंज समझती है ना? रेंज वर्ड का मतलब क्या होता है स्टैट्स में? Yes, ma'am. Yes, रेंज ma'am. स्टैट्स में क्या होती है बेटा जी? रेंज मतलब होती है समथिंग स्टार्टिंग मिनिमम वैल्यू दी जाती है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू दी जाती है, दैट्स रेंज। ठीक है, तो वो रेंज में बताया जाता है कि इतने से इतने के बीच की चीज है। जैसे आप कोई Hyundai गाड़ी लीजिए और i10 को कंपेयर कर लीजिए, तो Hyundai और i10 जो है वो सेम रेंज की चीजें हैं। आप समझ रही है ना? सेम रेंज है। रेंज मतलब वो Yes, जो ma'am. गाड़ी होगी, हाँ, वो जो गाड़ी होगी वो 10 लाख से 15 लाख के बीच की रेंज की चीज है। वो दोनों सेम सेक्शन यानी सेम सेगमेंट है। कॉफी में नेस्कैफे और ब्रू का सेम सेगमेंट है, पर डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट के लेवल पे है। ऐसे ही बच्ची ने कहा लैपटॉप सेगमेंट सेम होगा, सेगमेंट का मतलब रेंज उतने की आएगी, फिर भी वो डिफरेंट होगा। तो यही तो कस्टमर को चकराता है कि कौन सा बेस्ट है। मेरे पास अगर 10 लाख रुपए हैं तो कौन सा बेस्ट है, मुझे लेना है कोई मोबाइल फोन और सॉरी कार, तो कौन सी बेस्ट है? सेगमेंट सेम रहेगा, बस उसी में मुझे कुछ डिफरेंस दे दे कोई। समझ में आया विदु? ठीक है, यू गॉट दैट? सेगमेंट सेम ma'am. रखो, हाँ, उसी सेम सेगमेंट में डिफरेंस करो।
तो प्राइस सेम रखो, प्राइस का सेगमेंट रेंज वही रहे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तुमने नोटिस किया होगा कोई चीज 10 लाख जैसे 999 की मिल रही है, कोई चीज केवल 10 लाख की मिल रही है, तो वो 999 में कोई प्राइस डिफरेंस नहीं हुआ, वो सेगमेंट सेम रहा। कुछ और बताइए, एक और बहुत मेजर डिफरेंस होता है। मैम Ma'am, पैकिंग। Yes, that's what I was looking for. Who said packing? Packaging. Who said packaging? पैकेजिंग में बहुत मेजर डिफरेंस होता है, प्रोडक्ट बिल्कुल ही सेम होगा। आप लोगों ने वो देखे शहद के कितने सारे वो आते हैं, डाबर का, एंड डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, प्रोडक्ट सेम है बिल्कुल, हाँ पैकेजिंग में अंतर है। वो और ये च्यवनप्राश पैकेजिंग में अंतर है, बस बाकी सब चीज सेम है। खा के देखिए, देयर इज नॉट इवन अ चेंज इन द टेस्ट, बहुत कम चेंज होता है। यस आकृति, यू वांट टू ऐड मैम समथिंग? मैगी का भी सेम है। मैगी किससे, मैगी को किससे कंपेयर कर रही हैं? देयर हैज टू बी टू, दिस इज अ ड्यूओपोली मॉडल। यिप्पी और मैगी में अगर कंपेयर किया जाए हाँ, तो वो केवल कोई डिफरेंस नहीं है, एब्सोल्युटली। सी द प्रोडक्ट्स आर सेम, सेगमेंट इज आल्सो सेम, वो पैकेजिंग में वो डिफरेंस दे देंगे तो आपको लगेगा कि दो अलग अलग चीजें। ये आकृति, प्लीज गो अहेड। Ma'am, I said pricing and branding of some products. सॉरी, ब्रांड, ब्रांड Ma'am, advertising and branding of the product. एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग, वो सेलिंग एक्टिविटीज इसलिए दूसरी लिखी हुई है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, वो बहुत डिफरेंस कर देती है। सेम चीज बेचेंगे, बिल्कुल सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। सेलिंग एक्टिविटीज इसलिए दूसरी चीज, दो वेपन लिखे हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड सेलिंग एक्टिविटीज। तो सेलिंग कॉस्ट जिसमें एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आती है वो डिफरेंस कर देती है। किसी ने हायर कर लिया, अगर अब तो मुझे पता नहीं बॉलीवुड की कितनी वैल्यू रह गई है आफ्टर दिस मेस, बट एनीवे somebody has hired a big celebrity, तो वो प्रोडक्ट अपने आप में ब्रांड बन जाता है, वो इंडोर्स कर ले तो ये तो है ही। फिर सेलिंग एक्टिविटीज भी एक वेपन है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स डियोपोली में, इसको दिमाग में रखिएगा। बर्ट्रेंड मॉडल और ये सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे केवल एक ही बात कह रहे हैं कि रिएक्शन से ही मार्केट चलती है, दो लोगों के बीच के रिएक्शन से मार्केट चल रही है। एक आदमी कुछ अगर प्राइस से ऊपर नीचे कर रहा है तो दूसरा भी रिएक्ट करेगा। बट ऑल द थ्री मॉडल्स आर आइसोप्रॉफिट में कर्व से ये पता चल जाता है कि प्रॉफिट किसका बढ़ रहा है किसका घट रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए आइसोप्रॉफिट कर्व्स स्टैकलबर्ग और बर्ट्रेंड दोनों ने बनाए। बचेगा आपका अब एजवर्थ। आई विल टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास। So that's it for this, Bertrand.